नमस्ते सबको। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम हर रोज़ एक 11 का एक 12 का चैप्टर पढ़ते हैं। मतलब एक दिन 11 की क्लास होती है, एक दिन 12 की क्लास होती है। मैं माफ़ी चाहूँगी, वेडनेसडे को आपका MCQs का टेस्ट होना था और आज जो है वो 12 का होना था, वेडनेसडे को 11 का। पर मैं आज 11 का ले पा रही हूँ। 12 का मैं सोच रही हूँ आफ्टर जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे करने को। तो शुरू करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? यस मैम, वी आर रेडी। एंड हमने पढ़ा है, हम पढ़ के आए हैं, दिमाग में ये होना चाहिए जो पढ़ के आए हैं बच्चे। तो रूल्स आप जानते हैं। और हाँ, जो लोग पहली बार यहाँ चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपका डेली क्लासेस हो और हर वेडनेसडे और सैटरडे को आप टेस्ट दे पाएँ, तो बेल आइकॉन है साइड में, उसको भी दबा दीजिएगा। हर रोज़ लेक्चर फॉलो करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं रूल्स के बारे में। टोटल मार्क्स है 60 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 25%। इट मीन्स आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और वो सही होते हैं तो आपको खुद को हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क देना है, हर एक क्वेश्चन का 4। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए आपको -1 डिडक्ट करना है। ओके। तो पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाइए। हर एक क्वेश्चन के लिए यू कैन टेक 45 सेकेंड। ऑनेस्ट रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना है। कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। ओके, गुड लक। फर्स्ट क्वेश्चन। Antigens found on the surface of membrane of red blood cells are composed of lipids only, sugar only, sugar and carbohydrates. None of these. Next question. Which of the following is a membrane-less organelle? Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria. None of these. Next question. Which of the following is the largest constituent of the typical cell membrane and is also responsible for performing most of the functions of the cell membrane? Lipid, proteins, glycoproteins, phospholipids. Next question. A cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms because anything less than a complete structure of cell does not ensure independent existence. Metabolic reactions can only occur inside the cell. Nucleic acid present in the cell ensure living state. Membrane-bound organelles differentiate for proper functioning. Next question. Who concluded based on his studies on the plant tissues that the presence of cell wall is unique character of plant cell? Malthus Sherlin, Robert Hooke,
Theodore Schwann, or Rudolf Virchow? Moving to the next question, mesosome in prokaryotes do not help in replication, cell wall formation, respiration, or photosynthesis. Next question. Some gram-negative bacteria have peptidoglycan and an extra layer of cellulose, teichoic acid, both A and B, or lipopolysaccharides. Next question. Plasmodesmatar connections helps in cytoplasmic streaming, locomotion of unicellular organisms, synchronous mitotic division, movement of substances between the cells. Next question. The term plasmalemma is given by Naegeli, Porter, J.Q. Plough, and Kramer. Next question. All the substances can pass through the membrane except oxygen, carbon dioxide, hydrogen ion, or water. Moving to the next question. The longer the fatty acid chain, fluidity of the lipid bilayer increase, no change in fluidity, none of the above. Next question. In the plasma membrane, carbohydrates always faces outwards extracellular space, directed to all sides in the membrane randomly, always faces to the lumen of the cells, always faces inward to the non-polar portion of membrane. Next question. In plasma membrane, lipid molecules are arranged in head parallel, alternate, scattered, or in series. Next question. In the plasma membrane, the best method to study the properties of integral membrane protein is atomic force microscopy, freeze fracture analysis and electron microscopy, cryosectioning and electron microscopy.
all of the above. And now let's move to our last question. The fluidity of the plasma membrane increases with increase in unsaturated fatty acids in the membrane. Increase in saturated fatty acids in the membrane. Increase in glycolipid content in the membrane. Or increase in phospholipid content in the membrane. So here are your answers. You can check your answers और अपना स्कोर जो है फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. और इसके साथ ही आज मैंने कल पढ़ा था तो मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ. जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर ही काफ़ी है. आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, जब हमें जीतना हो तो हमें ज़िद करनी पड़ती है. पहले तो सबसे पहले खुद से करनी पड़ती है, दूसरे से तो बात की बात है. और अगर हार ना हो तो आप बस डर जाओ, हार तो अपने आप ही निश्चित हो जाती है. तो चलिए आइए अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं. और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए. द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस. मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो कब इंक्रीज करती है, जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन इंक्रीज होते हैं, या जब सेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होते हैं, या ग्लाइकोलिपिड कंटेंट इंक्रीज होता है, या फॉस्फोलिपिड कंटेंट इंक्रीज होता है. तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. फॉस्फोलिपिड ये है, और ये अगर इसमें क्या है, लिपिड का जो फैटी एसिड चेन है उसमें डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सा किंक आ जाता है. और अगर इस तरह से किंक आता है तो मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है, तो आपको पैक करने में मुश्किल होती है. तो आंसर हो जाता है इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बेस्ट मेथड है उसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन को स्टडी करने का, वो कौन सा है. अब ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, इसीलिए आप इसको अपना गलत नहीं समझेंगे और इसके +4 जो है वो लगा लेंगे. इसका आंसर है फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है. तो ये हेड पैरेलल है, ऑल्टरनेट, स्कैटर्ड और सीरीज. तो मैंने आपको बताया था कि लिपिड की बाइलेयर है जिसमें बाहर की तरफ को क्या होते हैं, हेड होते हैं. ठीक है, मतलब दोनों तरफ चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो चाहे साइटोप्लाज्म हो, दोनों तरफ क्या होते हैं, हेड होते हैं. तो ये क्या हुआ, हेड पैरेलल फैशन. ठीक है, तो आंसर ए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट किस साइड को होते हैं. आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो देखिए हमेशा वो बाहर होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ को, या फिर मेम्ब्रेन के सब तरफ को फैले होते हैं, या फिर मेम्ब्रेन के जो अंदर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इन द सेंस साइटोप्लाज्म वाली साइड को होते हैं, या फिर जो नॉन पोलर पोर्शन है मेम्ब्रेन का उसके बीच में होते हैं. तो आपने ये क्लियरली देखा था कि कहाँ होते हैं, आपने बाहर की तरफ देखे थे. हमने कहा था हाइड्रोफोबिक रीजन में नहीं होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक रीजन के साथ जुड़े होते हैं, या तो लिपिड या तो प्रोटीन्स. तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. सेल के ल्यूमेन में वो कभी नहीं होते हैं. ठीक है, मेनली मतलब ये कहाँ होते हैं, आउटवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होते हैं. ठीक, द लॉन्गर द फैटी एसिड चेन फ्लूइडिटी, मतलब जितना लंबा फैटी एसिड का चेन होगा फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कोई चेंज नहीं होगा फ्लूइडिटी में. तो आपको याद रखना है, मैंने आपको लिखवाया था, शॉर्टर द फैटी एसिड चेन मोर इज द फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर. तो यहाँ है बोला है लॉन्गर द फैटी एसिड चेन, तो फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए इसका आंसर ये गया. सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट. कौन से सब्सटेंसेस हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं. देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने सब बताया था आपको. वाटर भी समहाउ थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज़ कर सकता है, अदरवाइज इसके लिए एक्वापोरेंस होती हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है. लेकिन जो ये है आयन है, इसके लिए क्या बताए थे मैंने,
इसके लिए मैंने बताए थे आयनोफोर्स होते हैं, ठीक है, और इनको कैरियर चाहिए होता है जो इनको ले जाए, तो सारे के सारे जो है वो आर पार जा सकते हैं मेम्ब्रेन के, किसको छोड़ के, ये प्रोटॉन आयन को छोड़ के। टर्म प्लाज्मा लेमा किसने दिया था भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, ये दिया था J.Q. प्लो ने। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन किस में हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग एक साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन में, या माइटोटिक डिवीजन में, या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। तो आप जानते हैं दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। वो जो मिडल लैमेला है, अगर प्लांट सेल की बात हम कर रहे हैं उसमें होता है मेनली, ठीक, तो मिडल लैमेला को चीरता हुआ वो सेल वॉल से निकलता हुआ दूसरी सेल तक पहुंचता है, और ये है साइटोप्लाज्म का कॉन्टिन्यूएशन, ठीक। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं, इसीलिए आंसर होता है डी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा कौन सा एक लेयर होता है, सेलुलोज बैक्टीरिया में नहीं होता है, टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, तो बोथ ए एंड बी कैंसिल हो जाता है, तो आंसर बचता है लिपोपॉलीसेकेराइड। मिसोसोम इन प्रोकैरियोट डू नॉट हेल्प, किस में हेल्प नहीं करता है, रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था हेल्प करता है, दो डॉटर सेल को डिवाइड करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए एनालोगस है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो एक्चुअल में ये सारे गलत हो जाते हैं और सही आंसर होता है फोटोसिंथेसिस। किसने बताया था प्लांट टिश्यू पे स्टडी करते हुए कि प्लांट में का यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मैल्थस शिल्डन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे लेकिन नहीं बताया था, रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया था, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, सेल को टर्म दी थी, थोड़ा शॉन ने ही बताया था, हालांकि वो एक जूलॉजिस्ट हैं लेकिन उन्होंने ही बताया था कि प्लांट सेल का जो यूनिक कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। रुडोल्फ वर्च्यू ने नहीं बताया था, ठीक है। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन ओनली अकर इनसाइड द सेल, ये बात गलत है क्योंकि टेस्ट ट्यूब में भी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल इंश्योर लिविंग स्टेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है सेल में वो इंश्योर करता है लिविंग स्टेट को, नहीं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग कराएंगे, तो ये सारे ही गलत हैं, सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं वायरस का, वायरस जो है उसमें कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा होस्ट ढूंढता है, होस्ट की बॉडी को इन्वेड करता है और वहाँ होस्ट की बॉडी की मशीनरी जो होती है उस पर अपना कंट्रोल करता है। तो कौन सा है सेल मेम्ब्रेन का, टिपिकल सेल मेम्ब्रेन का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और वही मोस्ट ऑफ द फंक्शन भी परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन की। अगर आपका लिपिड आंसर था तो बहुत ही गलत था, आपको याद रखना चाहिए कितना परसेंट प्रोटीन्स पड़ी थी, 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारा काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, लाइक वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, ठीक, बहुत एंजाइमेट एज अ रिसेप्टर काम करेंगी, तो बहुत सारी फंक्शनिंग जो है वो कौन करता है, वो करता है आपका प्रोटीन्स, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आपने तो कहा था मैम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, अरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, बिना फॉस्फोलिपिड्स के तो वो जो मेम्ब्रेन है वो बना ही नहीं रह सकता, लेकिन प्रोटीन्स जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन सा एक है जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक में एक मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज में एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है, लेकिन इन सब में कोई भी नहीं है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो नन ऑफ दीज। एंटीजेंस जो आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं,
सिर्फ लिपिड्स होते हैं, शुगर होते हैं, नहीं, मैंने कहा था वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा यहाँ पे। तो आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप इस पे आंसर्स लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो इस पे आप आंसर लगाएंगे ए, ठीक है। इस पे आप आंसर क्या लगाएंगे, इस पे आप ए आंसर लगाएंगे, ठीक, सॉरी ए नहीं, इस पे आप डी आंसर लगाएंगे। तो सारे अपना अपना करेक्ट कर ले। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। यहाँ शुगर प्लस प्रोटीन्स होना चाहिए था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर सी जाता, ठीक। तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, ये टाइपिंग एरर है। हालांकि फिर भी आप आंसर डी लगाएंगे और अपना जो है वो करेक्ट कर लेंगे। चलिए, हो गया। अब अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।